अच्छा, एक तरीका और है चेक करने का। मैं ये क्रिस क्रॉस नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि एक फ्रैक्शन है ये 2a by x plus square और एक है 1 by a plus x square। मैं ये करता हूँ, I'll try कि either I'll make the numerator same or I'll make the denominator same and then compare, okay? Either I make the numerator same or I make the denominator same. So what I'm going to do here, मैं इसमें से again 2 common निकालूंगा, इससे 2 common निकालूंगा तो आएगा 2 times a plus x by 2 the square और फिर जैसे ही 2 common निकलेगा 2 square करके 4 हो जाएगा, you'll get 1 by a plus x by 2 the square और यहाँ पे आएगा 1 by a plus x square। अब मुझे दिख रहा है कि this number is smaller than this number, okay? This is smaller, this is bigger number, so therefore 1 by this number is a bigger quantity, this is a bigger number fraction, ये fraction bigger है इससे, okay? Fine everyone? So this was one good question, okay? ठीक है, तो all are unstable, ये हो गया। after this एक किसी और ने पूछा था शायद, मुझे बता दो, अपने आप बता दो ना, मेरे को क्यों याद करना पड़ रहा है। Hello. Sir, I asked a question that you said you will explain. Oh, okay, fine. The 59th question. 59th, huh? So I'm sharing this in the group, okay, everyone? This picture. See the question number 59, okay? Question number 59 is like this. Charges of plus 10 coulomb and minus 20 coulomb, plus 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed as in the figure. The force on a minus 5 microcoulomb charge is directed to the right everywhere. Region 1, region 2, region 3, region 2 and 3. ठीक है. See, you have to first understand. अगर यहाँ पे मैंने -5 यहाँ रखा मान लो, ठीक है, -5. Due to this plus 10, the force is like this. Okay. The closer you keep, if you keep it here, इस तरफ होगा बहुत ज़्यादा force. If you keep it here, towards plus 10, but small force. Okay. Fine, everyone. Now, if you keep the force on a -5 is directed to the right everywhere. Okay. If you keep the -5 here, okay, because of plus 10 there is an attraction force like this, right? And because of -20 there is a repulsive force which is like this. Okay, fine. Now I don't know the magnitudes of these, right and left. They could, you know, maybe the left is more than right, or maybe right is more than left, or maybe, you know, they are equal, they can cancel. I don't know. I'm unsure in which direction is the resultant force. Understood? Okay, we'll find out. If you keep it in between here, due to plus 10, the force is like this, right? Due to -20 also force is like this. So there is one thing for very sure, the resultant is going to come in the left. That's I'm very sure, okay? Or non-zero bhi hai. So what I'm sure that it is non-zero. Of course it is non-zero and it is to the left. This I'm very sure. Resultant is non-zero and to the left. Zero nahi ho sakta, right mein bhi nahi ho sakta, left hi hoga. Fine. Acha. In the third region, if you keep, due to plus 10, there is a force to the -5 है ना, ये तो right में ना, plus, no, sorry, left में, right? And due to -20 repulsive force to the right. Okay, here there is one thing. See, let me find out the L and R value. देखो जिसमें L value है ना, ये L value कितनी है? K into 5 into 10, right? Divide by this distance. Suppose this distance is x square, right? Fine. And the R value force is K into 10 into 20 divided by y square, where y is this distance. Sorry, 5 into 20. Do you understand this, everyone? Yes. Do you understand the values of these forces? सात्विक समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सिया?
So my current's going and coming every 2 minutes and data's not Okay. working good. Okay. So if you see these two forces, blue force का numerator भी ज़्यादा है, numerator is more, right, and denominator is less, right, than the green one, right? It's like, I don't know, numerator is also more, denominator is also less. That means the blue fraction is of course always greater than the green, right? This force is always greater than this, right? It has to be always. Understood, everyone? Whereas if you see the left and right here, either one left right, it's left right को देखो. Left wala is due to minus 20. It is k into 5 into 20 by some this distance z, and this distance is p. So this is z square, and the right force is k into 5 into 10 by p square. Now if you compare these two fractions, the right fraction ka numerator is less, but the denominator is also less. So you can't say for sure. You can't say for sure that which fraction is more or less. Sometimes this fraction will be more, some fraction will be more, okay, depending on particular values. Just for a quick revision, I'll tell you, अगर लिखा है m by n, ठीक है, m by n लिखा है और इस fraction की value f है, ठीक है. If you increase m, if you decrease n, then f is going to what? F is going to It's going to be greater. Increase. Increase. If you decrease m and if you increase n, f is going to Decrease. decrease. If you increase m and increase n, f is going to Increase. इसका होता है कांट से, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और कैन नॉट सेम भी हो सकता है. एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सपोज 8/10 है, ठीक है, तुमने बोला f इंक्रीज, m इंक्रीज किया और n इंक्रीज किया, f कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल तुमने 8 को 1 से बढ़ा दिया 9 और 10 को ना 10 से बढ़ा दिया 20. अभी देखो ये फ्रैक्शन कम हो गया, दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स बहुत कम हो गया ना फ्रैक्शन, राइट. और तुमने क्या किया, 8 को ना 8 को ज्यादा बढ़ा दिया, 8 को मान लो दिया. समझ में आया? अंडरस्टूड? तुमने दोनों केस में इंक्रीज किया है ना m और n को, राइट, लेकिन एक केस में कम हो गया फ्रैक्शन, इस केस में डिक्रीज हो गया, इस केस में इंक्रीज हो गया. तुम ऐसे भी कर सकते थे कि बराबर है, 8 10 है, इसको 16 कर दो, इसको 20 कर दो, लो इंक्रीज कर दिया, सेम कर दिया, इक्वल है फ्रैक्शन. अभी दोनों इंक्रीज किया लेकिन फ्रैक्शन इक्वल है. फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन? कि तुमने उस डॉपलर में तो पढ़ा होगा ना ये सब चीजें. m decreases, n decreases, then So even for this you can't say. yes, can't say. ठीक है, तो ये याद रखना. ओके, डिनोमिनेटर इज मोर, डिनोमिनेटर इज, ठीक है. सो इसमें यू आर नॉट श्योर, so you can't be sure. इसमें it is, you are sure it is left. In this case you are sure it is right. Sure, right. Okay, fine everyone. So the answer for that is in region 3. Okay, region 3. अच्छा, इसके बाद net force. Okay, there is one more which I want to tell you. It is 53. It's on SHM. Okay, 53. Read 53. I've put it in the group. Two charges each equal to q are kept at x equal to, must x equal to 0 axis बनाओ, a axis बनाओ. X equal to minus a, x equal to plus a. So this point is a comma 0. This point is minus a comma 0. ठीक है. फिर एक चार्ज रख दो, दोनों पे चार्ज q q रखे हैं, ठीक है, q and q. ठीक. Now what you're doing is you are putting a charge, a particle of mass m and charge q naught is present with the charge and small displacement y is less along the y axis. ठीक है, इसको देखो. सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ज रखा तुमने, some charge, you know, some, it doesn't matter. So यहाँ पे देखा q naught by 2. I'll just take it to be q naught. Okay,
Q naught. I am doing a general derivation, not just for this question. Okay, fine. फिर क्या करते हो तुम? तुमने नेक्स्ट माइनस ए प्लस ए. What? अच्छा हाँ, the charges are still plus Q plus Q. We have seen that if these are equal charges and you displace it to the SA, it is an unstable equilibrium. किया ना, देखा है ना everyone, right? वो बोल रहा है ऐसे नहीं किया, वो बोल रहा है ऐसे किया है. कैसे किया है? देखो ऐसे ऐसे डिस्प्लेस किया y में, ठीक है? So that it is now this point 0, y. Write this. It is now at the point 0, y. Write this quickly, guys. Okay. Fine. यहाँ पे अभी पॉइंट, अभी वो बोल रहा है देखो ये माइनस है, वैसे ये माइनस है, ठीक है? ये माइनस है. अच्छा ये बताना, अगर ये प्लस है, ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों भी प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ पे जैसे पहुंचेगा ये समझ में आ रहा है कि एक फोर्स ऐसी हो जाएगी और एक फोर्स ऐसी हो जाएगी. यस और नो? समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? ये फोर्स है, ये ऐसी हो जाएगी ना, और ये इसकी वजह से इट इज आल्सो प्लस, नो? सो इट विल बी लाइक दिस. यस, रिजल्टेंट ऑफ दीस टू will be like this. These two blue are symmetrical, exactly symmetrical, equal forces. So you'll have a vertical resultant upwards. Will the charge fly off? Will the charge fly off? Yes or no? Is it a stable equilibrium? No. No, no. Charge will fly off. भाग जाएगा ना यहाँ से, ऐसे भाग जाएगा, राइट? ठीक है. Now, what if this was not plus Q? This was minus Q. Okay, if this was minus Q, these forces would be directed towards this, and this is like this, right? है ना? ये distance A है, ये distance Y है, तो ये distance है under root of A square plus Y square, ठीक है? And each of these blue forces is actually this much K Q naught by A square plus Y square. There was a square root and then there is again a square, तो ये गया. Get it? Okay. If this angle is theta, then So we will. it's minus Q and minus A, right? So how is it? वो see minus Q जब डायरेक्शन ले लेते हैं फोर्स का, तो नेगेटिव चार्ज का वो नहीं लिखते ना कि कितना है minus Q plus Q. और दूसरा डिस्टेंस है वो तो प्लस ही है, मतलब डिस्टेंस तो A ही है, ये पॉइंट माइनस A है, पर डिस्टेंस तो A ही है ना. अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं, ये तो A ही है, ठीक है? ये समझ में आ गया ये वाला फोर्स का वैल्यू? अच्छा, अब ये दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, देखो ऐसे और ऐसे, F और F, तो इनके ऐसे, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसके क्या कंपोनेंट आ दोगे? 2F cos थीटा हो जाएगा ये, और ये F sin थीटा, F sin कैंसिल है, राइट? तो नेट फोर्स कितना होगा इस चार्ज पे? इस तरफ होगा 2F cos थीटा. समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? ओके. अब देखो 2K Q नॉट by A square plus Y square, और फिर cos थीटा अगर तुम यहाँ से देखोगे तो it is based by hypotenuse, so Y divided by under root of A square plus Y square. You get it? Okay, so this is my force, and the force is, I'll write it nicely, 2K Q naught into Y divided by Y square plus A square की power 3/2. Fine. ओके, इसको कॉपी कर लो इतना. y कॉमन कर, तो y 1 प्लस नहीं है, ये 3/2 आएगा, और y स्क्वायर है की पावर 3/2, तो y क्यूब आ जाएगा. नहीं है इस ऊपर y इतना लिख लेना तो बता देना, ठीक है?
अच्छा अब ये बताना मुझे, ये जो जब पार्टिकल इधर होगा, मान लो इधर इधर पे इस जगह पे, ठीक है, थोड़ा पास में आ गया, और तब उस पे फोर्सेस ऐसे होंगे ना, और जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम छोटा सा आएगा, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया ना, 0। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी जो फोर्स है, यहाँ तो फोर्स 0 हो गया ना, ऐसे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल फोर्स 0 हो गया, ठीक है, फाइन। तो देखो कैसे हो रहा है, जब तुमने इसको डिस्प्लेस किया था, इस पॉइंट पे फोर्स है, इस तरफ है, कितना है, इतना 2f cos थीटा, तो बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, वो चार्ज नीचे आएगा, ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आएगा, वहां पे फोर्स 0 हो जाएगा, राइट, बट उस पर इट हैज अटेन्ड वेलोसिटी, नो, तो इतना आया खींच के, तो वेलोसिटी अटेन, फिर वो ओवरशूट करेगा, ओवरशूट के इधर जाएगा, इधर के फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर पे फोर्स ऐसे लगेंगे, तो ऐसे आएगा ना, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलेगा ना, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे कहीं पढ़ा है इससे पहले, कहाँ पढ़ा है, अरे तुमने देखा ये मोशन, सर वो डेरिवेशन में ये मोशन पिछले साल देखा है ना तुमने, एक SHM चीज एसएचएम में देखा है ना, एक्सट्रीम तक जाती है, फिर वो मीन पे आती है, मीन पे फोर्स 0 हो जाता है, लेकिन मीन पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, तो आगे बढ़ जाती है, फिर उस पर ऑपोजिट फोर्स लगने लगता है ना। एक चीज ये ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, तुमने शायद एक चीज पढ़ी होगी पहले, इसने इतना कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लिया ना सबने, हेलो, Yes, sir. अच्छा एक चीज, एक थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे, सपोज ये स्प्रिंग है और ये मास है, ठीक है, तुमने पढ़ा था जब स्प्रिंग, इसको तुम नेचुरल लेंथ से ऐसे खींचते हो, x डिस्टेंस खींचते हो, और स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग kx लगाती है, याद है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक ऐसे वापस ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे आता रहता है, राइट, तो देयरफॉर इसको एसएचएम बोलते हैं, ठीक। अच्छा अब याद करो थोड़ा सा, गो बैक टू योर मेमोरी, और ऐसे ध्यान से तुमने बहुत नहीं पढ़ा होगा, बट एक क्वेश्चन जरूर तुमने रटा होगा, you must have crammed it up. All oscillations are SHM, but all SHMs are not oscillations. ऐसे ये याद क्रैम अप किया था ना, 2 मार्क का किया था ना, तो देखो there are many things which oscillate about a mean position, ठीक है, there are many things which oscillate about its mean position, all of them are not SHM, some of them are SHM, okay, every oscillation is not an SHM, okay, every oscillation is not an SHM. An oscillation is an SHM only if the force is proportional to minus x, x की power 1, okay, x की power 1, you give a displacement x and the force is kx, तो SHM है. If it is a kx square, it is not SHM, okay, it is not SHM, okay. In this case, if I give you a spring, this is a linear spring, linear spring का नाम ही है linear, मतलब 1 degree ना, याद है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री, बिकॉज इट्स ए लीनियर स्प्रिंग, x की पावर 1 है. Sometimes springs are not linear, they are cubical spring, kx cube, you can have a kx cube spring, okay. What is the meaning of kx cube spring? Just तुम x displacement करोगे, force will be kx cube, you displace by 1 centimeter, the force will be k into 1 cube, if you displace by 2 centimeter, the force will be 1 k into 2 cube, but still the force is to the mean position always. Will it perform oscillation? Yes, it will perform oscillation. Is this oscillation about mean position? Yes, it is oscillation about mean position. But is it SHM? No. Understood everyone? ठीक है, अगर फोर्स, फिर से सुन लो, फोर्स मीन पोजीशन के अराउंड है, हमेशा मीन पोजीशन के अराउंड है, मीन पे आते वक्त कम हो जाता है और मीन पे 0 हो जाता है, ठीक है, तो what can you conclude? That the object will perform oscillations. Fine. You can't conclude that the object is performing SHM. Fine. First thing, समझ में आ गया सबको, ठीक, ये object, what can you safely say? It is performing what? Oscillation. Oscillations. Now I'm asking, it is performing SHM, तुमको expression देखना है, you displace it by y, right? Is the force proportional to y? Or a complicated power of y? Is the force directly proportional to y or something which is not y power 1?
It's not directly proportional to. It's It not. is not just, ये नीचे वाला भी गंदी चीज है ना, ये नहीं होता तो ये SHM होता ना. Everyone is getting this or not? Right? मैंने बोला कि the force on the block, on the ball, on this particle is not just this circle. It is also this weird thing. It is not, I mean, force is y की power 1 होता है जब, so then it is SHM. Fine. अगर ऐसा नहीं होता, it is not SHM. Fine. इसमें there is also y square की power a plus a square की power 3, this extra complicated function, which is preventing it from having y to the power 1. Understood? So therefore, it is not SHM. Understood, everyone? Although it is an oscillation. Why it is an oscillation? Because the force is towards the mean. When the object is passing through the mean, the force becomes 0. When it overshoots, the force again reverses back. अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, इस जगह पे देखो, यहाँ पे आता है, तो फोर्स ना ऊपर हो जाता है, टुवर्ड्स मीन हो जाता है. ओके एवरीवन, तुमको समझ में आ रहा है क्या आदि सब कुछ? यस. लिख लो, इट इज नॉट SHM ऑल्दो इट इज एन ऑसिलेशन. ये क्वेश्चन में आया होगा ऐसे कहीं ना कहीं, ऑसिलेशन है प्रेसिशन नहीं है, ऐसा कुछ. ठीक है. In 53rd, there are the C and D options. I can't see. Can you tell me what are the C and D options? Sir, C is 1 by y and D is minus 1 by y. तो सारे गलत है, क्योंकि आंसर तो -1 by y स्क्वायर आ रहा है. ये देखो, इसको अगर मैं y, उसने बोला y much less than a ना. अच्छा नहीं, y much less, तो फिर a. ओके सॉरी, y much less than a बोला है, तो मुझे देखो ये एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, लेकिन अभी उसने बोला y much less than a, तो मुझे ना क्या करना है, y much less than a है तो y by a निकालना है, उसको 0 करना है. y by a निकाल कैसे निकालूंगा, यहाँ पे a स्क्वायर कर दूंगा, इसको a स्क्वायर 1 कर दूंगा और a स्क्वायर बाहर कर दूंगा, तो बाहर a क्यूब आएगा. तो ये ना एक्सप्रेशन कैसे बनेगी देखो, k 2k q नॉट y डिवाइड बाई a क्यूब y स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगी फॉर y लेस देन a. यस. और फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये y बाई a को 0 कर देते हैं ना, बिकॉज y इज वेरी लेस देन a, तो y बाई a वाली टर्म को 0 कर दी. ओके, इफ यू डू दैट you will get this 2k q नॉट y by a क्यूब. दिख रहा है? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस अप्रोक्सीमेशन? यस और नो? सर एक क्वेश्चन है. हाँ, y by a को हम अगर 0 कर रहे हैं तो y by a क्यूब तो और भी छोटा होगा ना. y by a क्यूब पर, हाँ छोटा होगा, पर वो तुम पूछ क्यों रहे हो? तो क्योंकि y फिर by तो पूरी टर्म 0 हो गई ना. एक मिनट, y by a को 0 किया तो y by a द होल स्क्वायर 0 कर दिया. हाँ, y by a होल क्यूब कहीं नहीं है, y by a नहीं, y by a एग्जैक्टली, एंड सिंस y is much lesser than a, तो वो भी 0 नहीं हो जाएगा. ये नहीं है. एक मिनट. हाँ, तो जो डिनोमिनेटर में a क्यूब है उसको a into a स्क्वायर लिख के देन y by a को 0. अच्छा तुम बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसे बोलो फिर, k क्यूब समथिंग है, फिर एक y है, y by a है, फिर 1 by a स्क्वायर, ऐसे बोलो. या एग्जैक्टली. नहीं, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है. वह पहले तो हमने अप्रोक्सीमेट किया था, राइट? डिनोमिनेटर में किया है 1 प्लस y by. अच्छा तुम एक काम करना, तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, तुम एक काम करना, तुम सबकी कुछ वैल्यू लेना. ठीक है, ओके. इसकी कुछ वैल्यू लेना, 1 ही सबको 1 लेना, 1 1 1 1 1. ठीक है, तुम सिर्फ y को, सारे जितने भी y के अलावा सबको 1 लेना. ठीक, और y को क्या करना, 0.0001 रखना एक बार, फिर ये वैल्यू निकालना कितनी आ रही है. ठीक, और एक बार y को 0.001 रखना, एक बार निकालना कितनी आ रही है, और तो ये निकालना ये कितना आ रहा है, ये चीज. ठीक है, ये चीज कितनी आ रही है, और फिर ये चीज कितनी आ रही है, ये पूरी चीज तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ओके, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, कि अभी भी नहीं आया सर समझ में.
ठीक है, ओके, ये क्वेश्चंस हो गए। Okay, now we'll go on to the next part of the chapter. One second. Do you have any other doubts before that? Yes, sir. I had a doubt in the 13th question in NCRT. Can you show screen? Do I just send it to you? Yeah, you send it on the group. Okay, so I'll just take a minute. What was the last topic I taught? Last thing I taught in the classroom? Was it a dipole? Huh? Yes, sir. Okay, dipole हो गया। तो dipole का derivation कर रहे हैं, electric field at equatorial line, electric field at axial line, ये सब करवा दिया था। Yes. Hello. ये सब करवा दिया था ना? The last part we wrote was that net force on a dipole is 0, which doesn't depend on the orientation of dipole and the magnetic of the electric field. That Okay. part was last. ठीक है, ओके। हाँ, तो डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था। ओके, तो आज ना मुझे गॉसेस लॉ पढ़ाना है। पहले मैं इसका डाउट कर लेता हूँ। तुमको 13th पूछना है, 14th पूछना है? The Hello? 13th, but the first picture I've sent, that has a part of the 12th question which they asked in the 13th A question. polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge. Okay. Estimate the number of electron transfer. Okay, you have found out a part. Sure, that's 11. नीचे का part. तो 11 को फोटो क्यों भेजा है? Because the I didn't take अच्छा, ठीक है, 12th पढ़ने के लिए, but 12th है नहीं इसमें। ठीक है। two insulated copper spheres A and B have their centers separated by distance. That By one. distance, what? 50 centimeters. So the 50 centimeter you Okay. will use in the next question. Distance है, okay. Two insulated charged copper spheres A and B, are they similar? ऐसा तो नहीं बोला ना, A and B are similar, ऐसा नहीं बोला ना? In the 13th question, they gave it identical in size. Yeah. अच्छा ठीक है, then we'll do. Okay. Suppose the spheres A and B are identical. ठीक है. दोनों पे चार्ज निकाल लिया ना, चार्ज दिया हुआ है दोनों पे A and B, दोनों पे डिस्टेंस भी दे रखी 50 सेंटीमीटर। Fine. Okay, a third sphere of the same size but uncharged is brought into contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is a new? Oh, nice. See, तुम suppose दोनों पे रिपल्शन है, तो दोनों पे प्लस क्यू है, ठीक है? ए और बी दोनों पे प्लस क्यू है। अभी तुम ए के पास एक सी बॉल लेके आते हो जो अनचार्ज्ड है, ठीक है? if the balls are identical and you touch them, the charge are divided 1/2, ठीक है? दोनों पे सम का इक्वल आता है। फिर सुन लो, अगर दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं और तुम दोनों को टच कर देते हो, तो पहले जो भी हो, फाइनली क्या होता है, सम का हाफ दोनों पे आता है, ठीक है? अगर एक पे चार्ज क्यू है, एक पे 0 है, तो सम कितना है? क्यू। दोनों पे कितना आएगा? q/2। अगर एक पे 10 है, दूसरे पे 20 है, सम कितना है? 30, दोनों पे 15 आएगा, ठीक है? फाइन, ठीक, ये कॉमन सेंस भी है ना, ठीक? उसके बाद फिर क्या किया, तो अभी ना राइट नाउ जैसे ए को टच किया तो ए का चार्ज q/2, सी का चार्ज q/2 और बी का चार्ज q है। अब तुमने सी और बी को टच कर दिया, ये किया है, तो अभी सम कितना है सी और बी का? q/2 प्लस q, 3q/2। तो अभी बी और सी दोनों पे आएगा 3q/4। समझ में आ गई बात? इस पे अच्छा जीपी क्वेश्चन भी बनता है, इस पे ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, तुम खुद सोचो कैसे बनेगा जीपी। एक बॉल को टच किया, दोनों पे q/2 आ गया, फिर उस पे दूसरी टच कर दी, उस पे q/2
क्यू बाई फोर आ गया, And then one more you do वन that. मोर क्यू बाई एट आ जाएगा, दिख रहा है 1/2 1/4 1/8, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे 10th बॉल पूछूंगा तो उस पे कितना चार्ज आएगा? We've used the formula for GP. जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मैं पूछूंगा व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दीस चार्जेस, तो क्या यूज करेंगे? Sum of the सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो हो गया, डाउट हो गया, क्लियर हो गया? yeah. Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, गॉसेस लॉ। ओके, और गॉसेस लॉ करने के लिए बहुत इजी है। गॉसेस लॉ में सिर्फ इमेजिनेशन चाहिए, ठीक है? सिर्फ इमेजिनेशन, पेन पेपर छोड़ दो, ठीक? तो मैं सोचो कि जैसे कि 2D जो एंगल्स होते हैं ना, 2D एंगल्स, ठीक है? तो 2D एंगल्स कैसे होते हैं, किसी ने इमेजिन किए होंगे, पहले इजिप्शियंस निकाला वो 360 डिग्री, है ना? गधे थे वो 6 वाले यूज करते थे, 360 भी यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो 360, उसके बाद फिर बोला 2 पाई बोलते हैं उसको, ठीक है? 2 पाई उस पूरे एंगल को, 2 डायमेंशनल में कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं? सिंपल 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है? अब 3 डायमेंशन में मतलब, तो ऐसे सोचो, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है? इट्स अ 3D angle is called a steradian. Suppose if your world was 2-dimensional, all you're seeing is a 2-degree swing, right? And therefore your angle is 2 pi. If your world is 3-dimensional, now you are like a bee which can, you have a visual angle, ऐसे visual cone बना सकते हो, तो मैं you can see around, okay? You have a, उसको क्या बोलूँगा? You can't say it 360 degree, okay? English language में ऐसे बोल सकते 360 degree view, wrong है वो. It's a 3-dimensional view which is centers here all sides, right? This is new to you. It is a new concept called 3D angles. Okay, 3D angles are measured in steradians. Okay, steradians, STERADIANS. Just put a word STE before the radians. Fine. And the whole complete 3D angle, if you are एक पॉइंट पे हो और चारों तरफ तुम सन पे हो और पूरे यूनिवर्स को देखोगे, कहां कितने एंगल पे लाइट जा रही है अगर सन से, इट इज 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है? फाइन एवरीवन, ये समझ में आ गया इतना? 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है? दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, वो नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। तुम क्या करते हो? स्टेरेडियन कितना स्टेरेडियन? 4 पाई स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन डिफाइन कैसे होता है? सुनो, एंगल थीटा कैसे डिफाइन होता है? थीटा s by r, ये बेसिक डेफिनेशन है एंगल की। थीटा इज s by, डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? s by r, किसको नहीं समझ में? हाथ खड़ा करके पूछो। s is the arc length, Riya, and r is the radius. yeah. 2-dimensional, ठीक है? इन 3-dimensional, 2-dimensional में तुम एक लाइन ऐसे सर्कल को देखोगे तो लाइन दिखाई देगी ना तुमको, ऐसे लाइन, मतलब you will see an arc, right? In 3-dimension, if you see a sphere, you will see some surface area of the sphere, okay? Fine. So if I have to imagine that, see this image, copy image. Make this diagram in your notebook. So are you screen sharing or sending in the group? No, WhatsApp.
Everyone make this diagram quickly. Steradian is the angle which the cone makes. It's a 3D angle, okay? Fine. Cos 90 is 0. हाँ. अब एक काम, अब ऐसे सोचो, ये बना लिया सबने, ठीक है? अच्छा, अब I said steradian is the angle which the cone makes, right? Suppose ऐसे cone, आइसक्रीम कोन है ऐसे, ठीक है? तो क्या होता है? You have to understand what is a semi-vertical angle and what is vertical angle. देखो क्या करो, तुम एक पेंसिल लो, ठीक है? दो पेंसिल ले लो, दो पेंसिल, सब लोग क्षितिज एंड सीरी वीडियो ऑन, दो पेंसिल ले लो, ठीक है? ये दो पेंसिल ले ली। अब इन दोनों पेंसिल के जो नॉन पॉइंटी एजेस, नॉन पॉइंटी एजेस, उनको साथ में रख दो, ठीक है? और जो पॉइंटी एजेस है उनको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट आउट कर दो, थोड़ा सा सेपरेट, 15 डिग्री ऐसे सेपरेट, ठीक है? दिखना चाहिए मुझे वर्टेक्स एंगल जो बना रहे हो तुम, दिख नहीं रहा है। हाँ, अब क्या करो, एक पेंसिल तुम्हारी इसमें एक्सिस है, किसी एक पेंसिल को एक्सिस मान लो, उसको फिक्स, उसको ऐसे ही रखना, वैसे ही रखना, मतलब उसको हिलना नहीं, वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है? एक पेंसिल एक्सिस है और दूसरी पेंसिल उसके आसपास ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, वो जो एंगल था दोनों के बीच में उतना ही होना चाहिए। तुमने एक एंगल फिक्स कर लिया 30 डिग्री मान लो, ठीक है? देखो रिया घुमा रही है उसको, देखो अबे देख, दोनों पेंसिल के नॉन पॉइंटी एजेस को साथ में रखो, इनके बीच में एक एंगल डिफाइन करो 30 डिग्री, ठीक है? 30 डिग्री डिफाइन कर लिया, 30, अभी एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब तुमको ग्रीन, और तुम्हारी रेनबो पेंसिल इज फिक्स्ड, ग्रीन पेंसिल घुमाना है, अब इसको घुमाओ तुम, ये एंगल चेंज कर दिया तुमने, ये तो 40-60 डिग्री है, ये फिर से 180 डिग्री कर, एंगल सेम रखना है और ग्रीन वाले को मूव करना है। So do you move it around the plane, around the Yes. pencil? Why confine yourself in one plane? Go in many planes. समझ में आया ये? Okay. The thing which you have just did is, एक कोन है तुम्हारे पास, सपोज वो बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप बनाई है तुमने, उसका जो सेंटर है उसमें, वो सेंटर वो बीच वाली लाइन है, ठीक है? वो जो एक्चुअली कैप में नहीं होती, लेकिन उसके अराउंड तुमने कैप को घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, सरफेस बना दिया कैप का ना, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड? ये इसी जो जितना एंगल इन दोनों के बीच में था ना, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ठीक है? वो 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है। इस 30 को तुमने ऐसे जो घुमा दिया ना पूरा, इसको ऐसे you rotate it fully। अभी जब तुम इसको यहाँ से देखोगे, you will see something coming out, right? Like this 3D visuals coming out, 3D rays coming out of this, out of that portion, which is opening up to an angle of 30 degree from the same vertical angle, right? इस चीज को बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है? फाइन। और स्टेरेडियन और एंगल, नॉर्मल एंगल में सिंपल सा रिलेशन है। स्टेरेडियन एंगल ये होता है, देखो शेयर कंटेंट, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? अगर मैंने कोन ऐसे बनाया, ठीक है, और ये मेरा एक्सिस था, ठीक है, ये एक्सिस था, इसके अराउंड मैंने इसको ऐसे घुमा दिया सच दैट इन दोनों लाइंस के बीच में, ये देखो, ये इन दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री था ना, ये 30 डिग्री इज ऑलवेज अ 2D angle, it is angle between two lines, right? But when you are seeing this from here, यहाँ से तुम देखोगे, you will see something which is like this, right? This is a 3D angle, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, इसका सिंबल है ये स्टेरेडियन, and this is equal to 2 pi 1 minus cos theta, where theta is the, कौन सा एंगल था वो, जो वो एंगल था जिसके अबाउट घुमाया था, 30 डिग्री था इस केस में। अंडरस्टूड? Understood? Sigma is 2 pi 1 minus cos theta. Theta is a normal 2D का एंगल जिसके अबाउट वो दोनों चीज घुमाई थी, राइट?
और 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अभी ये लिख लिया ना सबने, और ये जो सिंबल है ना ओम का, ये है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, फाइन एवरीवन, स्टेरेडियन, ठीक। अच्छा, अभी ना मुझे ये क्वेश्चन में तुमको एक चीज दिखाऊंगा और बताना उसमें कितना 3D एंगल है। पूरा स्फीयर का 3D एंगल कितना बताया मैंने? पूरा स्फीयर का 3D एंगल, पूरा स्फीयर का 3D एंगल कितना बोला था? 4 पाई। 4 पाई, याद है? पूरा स्फीयर का 3D एंगल कितना है? 4 पाई, ठीक है। इसका यूनिट कितना है? Steradian. स्टेरेडियन, ठीक है। पूरे सर्कल का 2D एंगल कितना है? 2 pi. 2 पाई, इसका यूनिट कितना है? Radian. Radian. हाँ, रेडियन, ठीक है। अच्छा, अभी विजुअल एंगल, अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा सा खुद ही सोचो, अगर पूरे स्फीयर का 4 पाई है 3D एंगल, तो हेमिस्फीयर का कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई है ना, समझ में आया? अच्छा, 2 पाई। हेमिस्फीयर को अगर बनाना है, हेमिस्फीयर को विजुअल एंगल कवर करना है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? वो जो 2 लाइन रिया ने ली थी, वो जो 2 पेंसिल, उनके बीच में कितना एंगल हो जाए कि पूरा एक हेमिस्फीयर कवर हो जाए? 90, because like it'll go like that, right? 90 ना, And then yeah, थीटा 90, थीटा 90 को रेडियन में कितना बोलते हैं? pi by 2. पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0. 0। उस इक्वेशन में डालो, स्टेरेडियन इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आएगा स्टेरेडियन में? 2 pi. 2 पाई, समझ में आया? और 4 पाई का हाफ कितना होता है? 2 पाई। डू यू अंडरस्टैंड द रिलेशन एवरीवन? Yes, sir. आदि यू एक्सप्लेन इट, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। So basically like for hemisphere जैसा हमने sphere के लिए किया तो half होगा और we'll take an angle of 90 degree. क्या हाफ होगा? वो क्या बोलते हैं पूरा एरिया। पूरा थर्ड एंगल कितना है? पूरा 3D एंगल कितना होता है स्फीयर? 4 पाई। स्फीयर के लिए 4 पाई होता है और हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई। 2 पाई, ठीक। तो हाफ है स्फीयर का। और कितना है 2 लाइन के बीच में, कौन से, अगर इसको देखना है तो 2 लाइन के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री लोगे तो कौन कवर हो जाएगा ना पूरा हेमिस्फीयर, राइट? एक कटोरा बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए cos 90 is 0, स्टेरेडियन is 2 pi 1 minus cos 0 which is 2 pi. Understood everyone? ठीक है, सबको ये समझ में, इतना समझ में आ गया ना? ओके, you can also note down the this इस इमेज में जो लिया है, ठीक है? सॉरी, हाँ, and you can also think of it like this, thus जो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है ना, हेमिस्फीयर का एरिया वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, है ना? वो एरिया 2 पाई r स्क्वायर, उसका डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। तो स्टेरेडियन का डेफिनेशन होता है एरिया बाय द r स्क्वायर। उसमें देखो एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर 2 पाई। अंडरस्टूड? ओके, सॉलिड एंगल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एरिया बाय r स्क्वायर। फाइन। But so that's an irregular area. So how do you? वेरी गुड। इरेगुलर एरिया और रेगुलर एरिया, देखो अब सुनो, तुम ऐसे इमेजिन करो, ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब, इस ग्लोब से लाइट निकल रही है, ठीक है? चारों तरफ लाइट निकल रही है सेंटर से, वही जो अभी लेटेस्ट इमेज भेजा ना उसी में, ठीक? ये चारों तरफ लाइट निकल रही है, एक बल्ब है, ठीक है? वो चारों तरफ लाइट फेंकता है, एक बल्ब है चारों तरफ लाइट फेंकता है। इफ यू इनक्लोज दैट बल्ब विद अ concentric sphere,
then things are very good. They are symmetrical. Everything is symmetrical, right? Right. Now suppose what do I do is instead of this, I with the cube, that this bulb is kept at the center of the cube and then light rays are coming out. Okay. Now you won't be able to understand in terms of the cone which I'm making, right? Cone तो नहीं बनेगा ना, right? उस केस में उस cone से नहीं समझते हैं. The analogy of sigma is 2 pi 1 minus cos theta is only applicable when you are understanding from the cone point of view. Understood? Even in this, there is an irregular area, right? Irregular area, ना? तो you can't understand in तो cone तो नहीं है ना, वो एक uniform cone. तो वो formula नहीं लगाएंगे 2 pi 1 minus cos theta. Okay? क्या लगाएंगे? वो the stereotype is whatever is the area, right, on the sphere divided by r square. Understood? Yeah, sir. अच्छा, one thing more. I just discussed कि अगर center of the cube पे रखा है, अगर center of the cube पे रखा है, एकदम center of the cube पे, तुम एक center of cube पे बैठे हो, एकदम बीच में, और तुमने अभी solid state पढ़ लिया ना? Solid state थोड़ा start हो गया ना? Yeah. ठीक है. BCC है, BCC बीच में एकदम body center पे एकदम रखा है center पे एक कुछ, वो चारों तरफ देखेगा, एक फेस पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? क्यूब के एक फेस पे. क्यूब के एक फेस को अगर तुम देखोगे सेंटर से तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा? यस गाइस, कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन. अरे तुम अगर एक पॉइंट से सर्कल देखते हो, कितना? What? I couldn't hear her. Q by r square. 2 by r square. तुम अपने कमरे के बीच में खड़े हो जाओ, ठीक है? एकदम कमरे के बीच में, एकदम बीच में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों के बीच में. अभी भूल जाओगी तुम्हारा कमरा ना क्यूबिकल है, सब भूल जाओ क्यूबिकल है. तुम समझो तुम्हारा कमरा स्फेरिकल है, ठीक है? अगर ये स्फेरिकल कमरा होता और तुम ऐसे चारों तरफ देखते ऐसे, कितना एंगल बनाते स्टेरेडियन में? कितना बनता? 4 pi. 4 pi. अब वो कमरा एक्चुअली वो नहीं है, स्फेरिकल नहीं, क्यूबिकल है. अगर क्यूबिकल है तो सारे साइड्स पे, सारे फेसेस पे बराबर तुम एंगल, विजुअली एंगल दिख रहा है ना, सारे एंगल्स पे तुम एकदम सेंटर पे हो तो, राइट? तो अभी भी तो the total sum is 4 pi, no? Whether you see, if you are looking and seeing ऐसे, right, कि तुम कितना आंखें खोलते हो वो तुम्हारा है third angle, right? तुम कितना आंखें खोल के क्या देखते हो? Whether you see a cube or you see a sphere, it doesn't matter what surface area. It's about you opening your eyes, right? How much are you opening, right? Like this. ठीक? तो वो तो same रहेगा ना? So the whole solid angle about you at a point, as a point, is 4 pi, and it is divided into 6 equal faces now, right? Right? तुम हर फेस को एक, अगर तुमको एक फेस देखना है, तुमको जितना आंखें खोल के देखना है वो उतना ही है ना जितना दूसरे फेस को देखना है. तो 6 में डिवाइड है, तो that means once for viewing one face, you are investing a solid angle of 4 pi by 6. Understood? Okay. It is as if you can think of it like you are a very lazy person. You don't even want to open your eyes to see something. So you'll use minimum amount of eyes you have to open to see something. It is still 4 pi by 6. Understood? Fine, everyone? ठीक है. अब इतना solid angle और ये सब इसलिए स्टोरी इसलिए क्योंकि गॉस है, ठीक है? गॉस ने बहुत सिंपल सा रूल दिया है, ठीक है? गॉस ने सिंपल सा रूल क्या दिया है? गॉस ने बोला है, पहले तो फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है? फ्लक्स क्या होता है? बच्चे कम हो गए, पता नहीं ऐसे क्या हो गया. फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्लक्स दोनों क्या होता है? फ्लक्स ये चीज होती है, सपोज वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप, इन अ कैनाल, ओके? कहीं जा रहा है, पानी बह के जा रहा है, ठीक है? एंड यू आर अ फार्मर, यू वांट टू इरिगेट सम ऑफ योर फील्ड, ठीक है? एंड यू हैव अ पाइप, ठीक है? लकीली यू हैव अ पाइप, एंड यू तुम क्या करोगे? पाइप डालोगे कैनाल में, पानी आएगा तुम्हारे ना, until unless your field is below the level of the canal, right? Of course. But a simple question है, अगर पानी is flowing from left to right,
see my video left to right, then of course you will keep the pipe like this, opening of the pipe like this, no, like this. You will not keep the opening of the pipe like this, right? Understood? You will keep the pipe, the surface area of the pipe perpendicular, exactly perpendicular to the flow lines, right? To get the maximum what? To get the maximum So water, right? This collection of maximum something is called flux. तुम जो कलेक्ट कर रहे हो ना उसको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है? जो पानी बह रहा है उसको फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे केस में, ठीक है? और यूजिंग विच एरिया उसको बोलते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? फाइन. Now there is one more thing. The direction of any area is given by a vector which is perpendicular to the area. Understand this. ये तक अभी तक तुमने सुना है कि नहीं सुना है? पहले बताओ कि एरिया ऑफ अ वेक्टर ऑफ एन एरिया इज गिवन बाय द परपेंडिकुलर ऑफ द एरिया. पता है कि नहीं? नहीं पता है? देखो, सपोज देखो, हेलो, कैन ऑफ सॉरी, हाँ हेलो, मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है? ठीक, इस सरफेस को अगर मैं ऐसे रखूं, ठीक है, तो ये सपोज ये एक्सप्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, दिख रहा है ये सबको कि नहीं? अगेन जैसे रखा है ना ये टेबल पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रखूं तो दिस इज एन एक्स वाई प्लेन नाउ, राइट? यस, सो आई कैन से इट this surface is in XY plane, right? If I change this like this, now it is not in XY plane, right? XY plane में नहीं है ना? So I am telling you the orientation of this surface by saying that it is an XY plane, right? I can also tell it this in a smarter and more concise way by saying the perpendicular of the vector area is in plus k cap in z axis, right? Or if I tilt this like this, see the xy plane also changes and the k cap also changes. जब भी k cap नहीं होगा ना, okay? So it is always smarter and more concise to give the direction of a plane, right? Of a plane's any area basically by a vector which is perpendicular to the area. Because जैसे तुमने tilt किया area को, vector change हो गया ना? Understood? Okay? तो area vector लिख लो, area vector is area vector का direction is given by a vector which is perpendicular to the area. ठीक है? Fine. ठीक है? अच्छा. तो देखो ना, फिजिक्स में ना या मैथ में दोनों जगह यही होता है. चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इसको ना मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं हाँ इसको देखो, देखना ध्यान से, सुनना, ठीक है? ये कि जो मैं ना क्या करूँगा, तुमको मेरा लैपटॉप दिख रहा है? मेरा लैपटॉप दिख रहा है ना? मेरे दूसरे स्क्रीन में देखना, लैपटॉप दिखेगा तुमको, दिख रहा है ना सबको? पे दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है जो कीपैड वाला प्लेन है, और एक स्क्रीन वाला प्लेन है, ठीक है? जो कीपैड प्लेन है ना उसका एरिया ऐसे है, ठीक है? ये दिख रहा है ना ऐसे. हेलो, अच्छा एक बात बताना, क्या ये दोनों एरियाज परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर है ना? ठीक है? क्यों परपेंडिकुलर है? तुम बोलोगे सर ये 90 डिग्री है ना ये एंगल. ऐसे बच्चे बोलते हैं, ऐसे अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब ऐसे नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? अब देखो, सुनना ध्यान से. ये दोनों सरफेस इसलिए परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनके जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है ना इस कीपैड का, वो ऐसे है. एरिया वेक्टर दिख रहा है ना, ये ऐसे है. और जो दूसरा पेन नहीं मेरे पास, कंघी है, उससे काम चला लेता हूँ. जो स्क्रीन का एरिया वेक्टर है ना वो ऐसे है, ऐसे. इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन. ओके, और ये दिस and this white are perpendicular to each other. That's why these areas are perpendicular, not because this angle is 90. Okay, understood? Hello? Yes, sir. Understood. Yeah. और अगर दोनों दो एरियाज के बीच में एंगल निकालना है
तो तुम ऐसे नहीं करोगे, ऑल्दो ये भी सेम होगा, बट सपोज मैं बोलूंगा अभी देखो इन दोनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस हो गया ना, थोड़ा सा 120 टाइप हो गया, राइट? तो ऐसे नहीं डायरेक्टली करते हैं, कैसे बोलते हैं एंगल क्यों है 120? क्योंकि ये व्हाइट वेक्टर और इस रेड वेक्टर के बीच में एंगल 120 है, ठीक है? फाइन, रीजनिंग सही है, ऑल्दो न्यूमेरिकली सेम है, ठीक है? वो द एंगल बिटवीन द रेड एंड द white vector is same as the angle between these two, numerically always ho gayi, because two lines are perpendicular and these two lines are also perpendicular to each other, so you know angle will be same, but reasoning क्या है, the area vectors are perpendicular, ठीक है? सर ये वाइट और रेड वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तुम they are unit vectors, they only give directions, ठीक है? और मैग्नीट्यूड तुमने दे भी दिया तो तुम्हारी मर्जी, तुम दे दो, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन से काम है ना उसके, ठीक है? ओके, अच्छा अच्छा, एक चीज और, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ऐसे लिखा है कि, अगर सिर्फ ऐसे लिखा है एरिया इज परपेंडिकुलर टू दैट, सपोज ऐसे लिखा है कि अ ब्लॉक इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, ऐसे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, लिखा है कि अ बुक इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, ठीक? तो बड़ा सिंपल है, जैसे तुम आज तक समझते हो वैसे समझोगे। बुक इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, बुक ऐसे खड़ी रखी है, तो दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? Book is perpendicular to the floor. Now the book is actually kept parallel to the floor. Understood? Fine? Okay, तो ये ध्यान रखना। Okay, I have few questions, you answer them, then we'll move forward. Area vector of the XY plane is what? So can you repeat? Area vector of the XY plane is what? Area of the XY plane. Area vector of the XY plane is what? K cap. That is one of the correct answers. Any other answer? minus K cap. Yes, minus K cap. Yes, minus K cap. Good. और area vector of the YZ plane is what? I and minus I cap. I और minus I, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया ना? एवरीवन, किसी को नहीं समझ में आया ये चीज? area vector समझ में आ गया? सर ये is this related to वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कि XY प्लेन इज इन I एंड J और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से K आता Yes. है? हाँ, तो ये भी लिख सकते हो, वेरी गुड, तुम ये लिख सकते हो। एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन, area vector of a plane is parallel to, right? Area vector of a plane is parallel to cross product of any two vectors in that plane. Area vector of a plane is parallel to the cross product of any two vectors in that. तो उस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर उठा लो, उनको क्रॉस कर दो, एरिया वेक्टर में आ जाएगा। मतलब पता है ना, a cross b is given in the direction perpendicular to a and b, right? a and b ऐसे करते हो तुम, a and b है ना वो, so a and b make a plane, ठीक है? a and b vectors make a plane and a cross b is n cap to the plane of a and b. Okay, you can say to maximize flux, So your voice is you have to breaking. keep the hello. Hello, It's still It is breaking. breaking. am I? So yes, Still not audible? No, I'm not. Okay, wait a minute. okay, now you are. That's fine now, sir. Oh, am I? Is it fine? I don't think. Yeah.
See, so I was saying that the area vector, I think I'm freezing. Yeah, you all are freezing for me. 1 second. Recording in progress. Hello, can you hear me? I was saying that the you can say it in two different ways. First, you can say to maximize flux, you have to keep the area perpendicular to the field, right? Area को field मतलब the area is perpendicular to the water flow, right? Field. Or you can also say to maximize flux, you have to keep the area vector parallel to the field. Area vector parallel to the field. ये समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है. लिख लो फ्लक्स इज इक्वल टू, तुम्हारी बुक में मैं भी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, तुम्हारी बुक में लिखा होगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा. देखो ई एस कॉस, एरिया वेक्टर को एस से बोलते हैं. मुझे नहीं पता क्यों इतना फैंसी है, एरिया में कौन सा एस आता है पता नहीं, पर एरिया वेक्टर को एस बोलते हैं. ठीक है, एस. तुम्हारी बुक में शायद एस भी हो सकता है ए हो. क्या लिख रखा है तुम्हारी बुक में? देखो जल्दी से बुक खोलो एनसीईआरटी की. Please open areas, flux, electric flux page topics and tells me it is phi is equal to E S cos theta, right? नहीं मिला. It says S ना, E S cos theta. ठीक है, लिख लो उसको. Phi is E S cos theta. ठीक है. This is the electric field. Okay. And this is your area. Area is kept like this. Then your S vector is going like this. And theta is the angle between the E and S, theta, okay? And your flux is equal to E S cos theta, or is also E dot S, okay? Dot product of E and S. You can see when theta is 0, phi is max, right? When theta is 0, phi is max. And phi is how much? Phi is E into S. Okay, when theta is equal to 30 degree, phi is equal to cos 30, ES cos 30, ES cos 30. Cos 30 कितना होता है? √3/2. When phi is equal to 60 degree, sorry, theta is equal to 60 degree. ठीक है, phi is equal to ES cos 60 ES by 2. When phi is equal to 90 degree, flux is 0. You're not catching any water here. Flux 0 means you're not catching any field lines or not catching any water. You are a stupid farmer. पाइप डाल दिया पर परपेंडिकुलर डाल दिया वाटर के, कोई पानी नहीं जाएगा उसमें. ओके फाइन. ओके, फ्लक्स. So flux क्या होता है? Flux is actually, you have to understand, flux is like how much electric field lines you are catching in that area. You have to understand this term. The concept क्या है वो, ठीक है? How much electric field lines you are catching. If you want to catch more electric field line, either you have to increase the electric field of itself, right? Magnitude, intensity, how many lines per unit area, or you have to increase your surface area, or you have to keep the orientation nicely, right? Understood? So have you understood flux? ठीक है. Sir, अगर इसका angle is more than 90 then? Okay, if angle is more than 90, अगर ये ऐसे है तो 90, अगर ऐसे किया, अच्छा तो it is the acute angle between them. ओके, एक्चुअली तुम वो भी कर सकते हो, तुम चलो कर लो ऑप्टियूज कर लो. 120 डाल लिया तुमने, मजा आ गया तुमको. cos 120 कितना आएगा? -½ आएगा ना, which is same as
120 ये है, 120 अगर ऐसा है तो सेम ये फ्लक्स वैसे ही होगा ना, जैसे अगर ये ऐसे लेते तुम 60 लेते, राइट? और कॉज मतलब इंटरेस्टिंगली कॉज ऑफ π/2 प्लस थीटा, ये चीज तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देनी चाहिए ना, है ना? नहीं माइनस, ये माइनस हो भी जाए तब भी मतलब बेसिकली ये है ना, ग्राफ में इसके अबाउट चीज सिमेट्रिकल है, ठीक है? कॉज में तो फर्क नहीं पड़ता, तुम ले लो नेगेटिव, मतलब ऑप्टिक्स ले लो तुम, ठीक है? ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और है, फ्लक्स फाई, ये डेफिनेशन है, ठीक है? फिजिक्स डेफिनेशन ये है, फाई इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ई डॉट एस। अब देखो इसमें ई इज अ वेक्टर, है ना? टुडे वी आल्सो लर्न दैट एरिया इज आल्सो अ वेक्टर, ओके? एरिया इज आल्सो वेक्टर। अच्छा बाय द वे मुझे एरिया वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, वो तो मैंने करवाए नहीं। एरिया वेक्टर जल्दी से लिखो, ये x है, ये y है, एक स्क्वायर है जो रखी है जिसका साइड 4 है, जिसका साइड 4 है। अब इसका एरिया वेक्टर तुमको निकालना है, जल्दी से बताओ। स्क्वायर ऑफ साइड 4 है, xy प्लेन में रखी है, इसका एरिया वेक्टर कितना है? और एक और बताओ, एक सर्कल है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 है और ये yz प्लेन में रखी है, इसका एरिया वेक्टर निकालना है, जल्दी से बताओ। एरिया वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड देन द डायरेक्शन। कितना है इसका? कितना है एरिया, कितना है? 16 16। या फिर आगे, अरे मैग्नीट्यूड बता दिया, वेक्टर पूछ रहा हूँ मैं, डायरेक्शन भी चाहिए। या इट्स इन z डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ओके। और इसका एरिया वेक्टर कितना है? Pi into 3 square in, yeah, in x direction. एवरीवन अंडरस्टूड एरिया वेक्टर निकालना? ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज गोइंग इन अ 10 न्यूटन पर कूलम, राइट, एंड इट इज गोइंग इन द प्लस x डायरेक्शन, ठीक है? एंड there is a square area kept x y z, x y z, x y z, okay, y z. There is a square area kept, suppose square का side is 2 meter. What is the flux? What is the flux? What is the flux, guys? It's 10 into 4 into 1. 10 into 2 square. अगर तुमको एक्चुअली वेक्टर में निकालना है तो ऐसे लिखो, E वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम I cap, okay, and the area vector is equal to 2 square, again I cap, right, and the flux is equal to E vector dot A vector, so you have 10 I cap dot 4 J I cap, right? 10 I cap dot 4 I cap, which is 40. I cap dot I cap is 1, so 40. Understood? अच्छा यूनिट उसकी क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके? एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा, फाइन। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? ठीक है, फाइंडिंग फ्लक्स, तुमको फ्लक्स का थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया का फ्लक्स कैसे निकालते हैं। 1 सेकेंड।
do this easy question. Just read this and zoom chat में, ठीक है? Just read this and tell me the answer. और फिर मुझे वो बता दो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसको फोटो भेज दो मुझे. Send photograph of dimension of electric flux. You all can hear me?